Now, guys, remember this discount bond wala calculation. You know, as we kind of concluded when we were discussing about constant yield price trajectory, that as and when the time passes, like when the YTM is assumed to be constant. Actually, that's not, I mean, yeah, let's assume that the YTM is constant. As and when time passes, the maturity kind of approaches, the price of this discount bond keeps on increasing, right? Because the instances of discount are reducing. That's why the price increases, right? All of you? Hello? बराबर ना Yes, sir. like हाँ बराबर like 3% coupons are discounted at let's say 6% YTM. So this earlier was happening at 6 times, six cash flows, and later it was happening 5 times. So yeah, that's a price. That's why the price increased. But the question is, if I purchased the bond when 3 years were remaining, when I purchased the bond at 852, and let's say after 6 months, at when the 2.5 years are remaining, I sold this bond at 873. Can you tell me what is my gain over here, capital gain? I purchased at 852 and I sold at 873 after 6 months. 21. The capital gain on a fixed income security in this case is, everyone, 21 roughly, like keep the decimals aside, roughly 21. हाँ, जतिन इज लाइक इतना इजी आंसर आ गया, ये तो आंसर होगा नहीं. परसेंटेज में पूछ रहे हो? नहीं, डॉलर अमाउंट 21 कैपिटल ना? गेन $21. Well, the real answer is 0. Meaning, तुमने $21 का आंसर इसलिए दिया बिकॉज इन केस ऑफ इक्विटी you are used to this calculation, selling price minus the purchase price. But in case of a fixed income security, the formula to calculate capital gain is selling price minus, bracket open, purchase price plus amortization of discount minus amortization of premium. Now, I'm not going to talk about premium right now because we have taken discount bond as an example. But the bigger question is, I'm sure you have this question. A, what is amortization of discount? Question number 1. And B, why am I adding it to the purchase price? Am I correct? Here's the answer to that. I'll take slightly different numbers and then come back to this example, okay? Because यहाँ पे है ना, वो 3 साल का बॉन्ड है. मेरे को अगर ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा ईजी तरीके से समझाना है तुम लोग को, the concept doesn't change whether it is a 1 year bond or a 100-year bond. The concept doesn't change. So I'm going to take a 1 year bond ka example and then come back to this. So yeah, first of all, I hope you took a note. Unlike equity, the capital gain of fixed income security is calculated differently. There is something called as amortization or discount. Once you understand that, amortization of premium is very easy. So let's understand amortization of discount and the context behind it. Yeah, remember that example we discussed, that it was a 1 year bond, the coupon was 9%. This was the first discussion we did when we started fixed income. It was a 1 year bond and 9% was the coupon and the par value was 1 lakh. So on maturity after 1 year, you were getting $9,000, and guess what, you were also getting your 1 lakh par value, right? And remember I told you, अगर तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, क्या तुम ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे? प्रोवाइडेड अगर उसका प्राइस 1 लाख रहा तो नहीं ना, क्योंकि तुमने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 9,000 ही मिलेगा, तुमको 9% रिटर्न ही मिलेगा. तुम्हारा रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है? 10%. तो कैन आई से टू गेट द प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड as on today, you discounted the future cash flows at the required rate of return raised to the power 1. Not at 9% but at 10%. What say Jatin and Vasudev and Dev?
Huh? Yes, So sir. when you did that calculation, the price of the bond, the present value of the bond was $99,090. And now when you calculated the return, the yield of the bond, the calculation was 1,09,000 upon 99,090 minus 1 into 100. The answer was 10%. The yield to maturity was 10%. So even if the coupon rate was 9%, effectively, the word is effectively, can I say you earn 10%? Can you tell me why did you earn 1% more? What is happening over here? ये एक्स्ट्रा 1% कहाँ से आया? Investing less than 1 lakh, no? तो नंबर बोल ना, नंबर बोल. यू आर राइट, नंबर बोल लेकिन. 990 rupees. कहना से तुमने $99,090 इन्वेस्ट किया और उसके सामने तुमको 1 लाख मिला, मतलब 910 रुपया ज्यादा मिला तुमको. कहना से वो 910 ज्यादा मिला करके तुम्हारा रिटर्न 10% है. हाँ, हाँ. कहना से जब तुमने इन्वेस्ट किया डे 1 पे, उस दिन पे YTM तो 10% था. हाँ, ऑल ऑफ यू. तो डोंट यू थिंक तुमने 10% YTM है, 99,000 का प्राइस है, ये सोच के इन्वेस्ट किया कि भी हाँ 99,000 डालूंगा 1,09,000 मिलेगा और मेरे को 10% रिटर्न मिल जाएगा. माई पॉइंट इज कहना से ये जो तुमको 910 मिला है इज इन अ वे और इफेक्टिव इंटरेस्ट ओनली. ये जो एक्स्ट्रा 910 मिला है वो उसके वजह से 10% हो रहा है ना. और व्हाट इज योर इफेक्टिव इंटरेस्ट? YTM 10% ही ना, बराबर. व्हाट इज YTM? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड, बरोबर. तो ये जो 910% है उसके वजह से 10% हो रहा है, बराबर. 910 रुपया जो है उसके वजह से 10% हो रहा है, बराबर है भूमिका. तो तुमने अपने आप को क्या बोला जब तुमको पूरा 1 लाख मिल गया, मतलब 910 मिल गया, तुमने क्या बोला? हाँ ये तो मिलने वाला ही था, बिकॉज यू हैड ऑलरेडी अज्यूम ना, तब जाके 10% हो रहा था ना YTM. कहना से जब तुमको 910 मिला यू आर लाइक हाँ ऑब्वियसली मिलने ही वाला था 10%, तो ही 10% रिटर्न होगा ना कैलकुलेशन में, 10% होएगा नहीं, बराबर है. कहना से अगर 910 नहीं मिलता, 510 मिलता, 410 मिलता, तो तुम बोलते अरे यार शिट लॉस हो गया मेरा. हाँ, हाँ कि ना भूमिका? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट वीक को अपने डिस्कशन में आएगा. 510 और 410 कौन से केस में आता है? जब मैं बेसिकली अगर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरे को एक बात बताओ, 910 मिला तो कहना है से तुमको लगा कि हाँ ये तो ऑब्वियसली मिलने ही वाला था, तुम्हारा हक था. हक क्यों था तुम्हारा? क्योंकि तुमने डे 1 पे तुमको रियलाइज, तुमने डे 1 पे देखा रे YTM तो 10% है, तो 910 मिलेगा तो ही 10% होएगा ना, बराबर है ऑल ऑफ यू. तो 910 कब मिलेगा? जब तुम्हारा मैच्योरिटी पे तुमको 1 लाख मिलेगा. एंड व्हाट इज 1 लाख? इट इज 99,090 प्लस 910. 99,090 is your purchase price plus 910 is amortization of discount. ये जो तुमको 910 जो एक्स्ट्रा मिलने वाला था ना मैच्योरिटी पे, वो स्प्रेड हो गया ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड. आर यू गेटिंग इट? इन केस ऑफ द टेबल ऑन द राइट साइड, पर्पल कलर, 852 बिकेम 1000 विच इज 148 का फर्क. ये जो 148 का जो डिस्काउंट मिला ना तुमको, वो धीरे धीरे तुमको मिलेगा टुकड़े टुकड़े में ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड. इट इज स्प्रेड ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड करके. स्प्रेडिंग इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन. स्प्रेड ऑफ डिस्काउंट, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट. यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे दूसरा नंबर, यहाँ पे दूसरा नंबर. ये जो 148 है ना उसका पूरा टुकड़ा है यहाँ पे. आर यू गेटिंग इट ऑल ऑफ यू ओवर हियर? क्लियर अबाउट दिस सो फार? परचेज प्राइस और अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट समझा? मैं पूरा फॉर्मूला समझा रहा हूँ कि कैपिटल गेन इस तरह से कैलकुलेट क्यों करें, पर परचेज प्राइस और अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट समझा तुमको? व्हाट इज अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट? कार ये तो मुझे मिलने ही वाला था, कौन सा बड़ा बात है, बराबर भूमिका? तो डोंट यू थिंक कि तुझे मिलना चाहिए था 1 लाख, एंड नाउ लेट्स से फॉर सम रीजन
some reason, I am not really getting into, let's think hypothetical right now. Instead of getting 1 lakh, let's say on the last day you got 99,500. तो तुम नहीं बोलोगे यार मेरा तो लॉस हो गया? नो सर. क्यों? तेरे को 1 लाख मिलना चाहिए था. देख तेरे को 9,000 कूपन मिला, वो तो अलग ही है, पर तेरे को 1 लाख मिलना चाहिए था ना मैच्योरिटी पे. तो बात तो उसकी उस चीज की बात हुई थी. तूने फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट किया था ना, 1 लाख को डिस्काउंट किया था ना तूने. तेरे को 1 लाख मिलना चाहिए था, तेरे को 1 लाख नहीं मिला फॉर सम रीजन. 99,500 मिला, तो तेरा 500 रुपये का लॉस नहीं हो तेरा. सो बट इन्वेस्ट तो 99,500 से कम किया है. बात बराबर है, पर तुझे ये सोच के तूने इन्वेस्ट किया है कि भाई मुझे 910 मिलेगा आगे जाके. डे 1 पे जब तूने 99,000 इन्वेस्ट किया था, YTM 10% था, तो YTM 10% और 99,090 हुआ कैसे? वो 910 के वजह से हुआ ना. तूने जब डे 1 पे इन्वेस्ट किया, सुन मेरा बात, तूने जब डे 1 पे इन्वेस्ट किया, तूने जो डिसीजन लिया इन्वेस्टमेंट का, वो YTM देख के ही लिया रहेगा ना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन. यस सर. बराबर है. यस तो सर. YTM का 10% मुमकिन कैसे हुआ? वो मुमकिन तब हुआ जब तूने 99,000 में इन्वेस्ट किया, मैच्योरिटी पे 9,000 कूपन मिला और 910 भी मिला. इसमें से एक चीज नहीं मिलेगा तो तेरा लॉस नहीं हुआ क्या? सॉरी, मतलब ये नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर? तो तेरे हिसाब से 10% बनने के लिए 1 लाख जरूरी है, नथिंग मोर लेस देन 1 लाख. हाँ वासुदेव, आई एम वेटिंग. इफ यू आर प्रोसेसिंग तो बात अलग है. यस सर, अंडरस्टूड. भूमिका तेरे को समझा? सो बट किस सिनेरियो में कम मिलेगा? ये तो 99,000. ये तो मैं लास्ट डे का बात किया, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है. पहले मेरे को कंक्लूड तो करने दे. तो तुमको क्या लगता है 500 रुपये का लॉस हुआ ना 99,500 के हिसाब से? बोल, तो तुमने निकाला कैसे 500 रुपये का लॉस? तुमने 99,500 सेलिंग प्राइस लिया माइनस 1 लाख, और ये 1 लाख है क्या? 99,500 माइनस 99,090 प्लस 910, एंड दैट्स हाउ यू कैलकुलेटेड कैपिटल गेन और लॉस ना. तुम्हारे हिसाब से 910 मिलने ही वाला था, पर पूरा 910 मिला नहीं, कम मिला थोड़ा. बराबर भूमिका कि नहीं? So the formula is like discount के केस में amortization of discount and premium के केस में amortization of premium ना. हाँ, क्योंकि प्राइस गिर रहा है उसमें, ये प्रीमियम के केस में, एज एंड व्हेन टाइम I पासेस. assume together इसलिए तो हाँ? confuse हो गया ना. I assume both together. नहीं, तो अगर डिस्काउंट बॉन्ड है ना, उसका कैपिटल गेन का कैलकुलेशन खाली इतना ही होएगा. अगर प्रीमियम बॉन्ड है तो डिस्काउंट वाला पॉइंट हटा दे, परचेज प्राइस माइनस अमोर्टाइजेशन प्रीमियम, वैसे तो कैलकुलेट करेगी कैपिटल गेन और लॉस. समझा? हाँ. पर तुम्हारे किताब में है ना पूरा एक साथ लिखा है, इसके लिए मैं तुम लोग को जब तुम एक्चुअली में पढ़ो तो तुमको नया नया नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है. पहले अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट होता क्या समझा, ऐड क्यों किया वो समझा, और कैपिटल गेन इस तरह से कैलकुलेट क्यों किया वो समझा. इक्विटी में ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है, वो बहुत सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस. पर यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू होता है. कैरिंग वैल्यू मतलब द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कीपिंग इन माइंड द डिस्काउंट, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट. समझा जतिन? And that is the reason why when I asked you the original question over here in this example, कि भाई मैंने जब खरीदा, राइट साइड का बॉक्स देखो, मैंने खरीदा 852 के भाव में और 873 के भाव में बेच दिया, तो मुझे जो एक्स्ट्रा जो 21 मिला है ना, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था ना. अगर ये नहीं मिलता तो मेरे को YTM 12% नहीं होता यार 6 महीने बाद. ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, करके कैपिटल गेन 0 है. इन दिस केस सेलिंग प्राइस, कौन सा कलर बचा है, पर्पल लेता हूँ. इन दिस केस सेलिंग प्राइस इज 873 एंड कैरिंग वैल्यू इज 852 प्लस 21 एंड योर कैपिटल गेन इज 0. समझा? What is the amortization of premium in this case? In this case, there is no amortization of premium because this example is only for a discount bond. So for a discount bond, the formula ends over here only. तुम्हारे किताब में पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके लिए मैंने प्रीमियम लिखा. समझा?
क्यू के लिए तो डिस्काउंट बॉन्ड का प्राइस बदल रहा है एज एंड व्हेन टाइम पासेस, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट प्लस होता है क्योंकि वो तो तुमको मिलना ही चाहिए था. एंड सिमिलरली इन केस ऑफ अ प्रीमियम बॉन्ड, एज एंड व्हेन टाइम पासेस प्राइस गिरता है. तो कैपिटल गेन इज सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस minus amortization of discount. It is the amortization which is ensuring that you get the YTM which was there on day one. It is the amortization. अगर वो नहीं हुआ तो वो गेन या लॉस. हाँ बोल देव. No, so I understood. I got it. तो हम अगर पिछले वाले डिस्काउंट वाले में सर, हाँ इसमें सारे डिफरेंसेस को ऐड करेंगे तो वो 910 का वैल्यू आएगा. नहीं, इसमें 148 आएगा ना, 850 to 2000. हाँ सर 48 आएगा. हाँ आएगा ना, क्यों नहीं आएगा यार, ये तो सामने ही तू कर ले. मैंने 850 to 2000 का डिफरेंस लिया है, वो 148 है, वही तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया बीच में. कर ले. 100% सेम आएगा विदाउट एनी चेंज इन डेसिमल. अगर तुम हर एक डेसिमल का ध्यान रखोगे तो एग्जैक्टली सेम होएगा, राउंड ऑफ ही करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल 873 के जगह पे कौन सा कलर बचा है, पर्पल कलर, तुमने 873 के जगह पे तुमने 893 पे बेचा, तो यहाँ पे तुम्हारा कैपिटल गेन है. व्हाट इज द कैपिटल गेन? 893 माइनस 873, दैट इज द कैपिटल गेन. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 893 एंड योर कैपिटल गेन विल बी रफली $20. आर यू गेटिंग इट? और ये कब होगा 893? जब YTM गिर जाएगा तो ही प्राइस बढ़ेगा ना. So when the YTM is constant, there is no capital gain or loss. But when the YTM changes, there is capital gain or loss. Of course ना, प्राइस बदलेगा. ये पूरा डिस्कशन वापस आएगा इसके बाद वाले चैप्टर में. कौन सा वाला चैप्टर? अपने PDF के हिसाब से. Keep this in mind. Okay?